కాదు గురించి జవాబు दे नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। सबसे पहले नजर आज के एजेंडे पर। बहुप्रतीक्षित जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान चिदंबरम बोले, तय होनी चाहिए अधिकतम टैक्स की सीमा। मूल बिल को मनी बिल बनाकर पिछले दरवाजे से ना पास कराए केंद्र सरकार। और सार्क की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ पहुंचे पाकिस्तान। बैठक के वेन्यू के बाहर आतंकियों की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्री उठा सकते हैं आतंक को पाप के समर्थन का मुद्दा। चलिए तो आपको बता दें, सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी की। आपको बता दें 16 साल से इस बिल लंबित पड़ा हुआ है और आज इस पर सुबह से चर्चा हो रही है। तमाम चर्चाएं हो चुकी, तमाम लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। क्या कुछ जेटली ने जवाब दे रहे हैं, वो क्या कुछ जवाब दिया गया, वो जरा सुन लेते हैं। Constitution itself envisage federalism and mentions India as a union of states. The states admittedly have to be stronger, but the union also must be there. The union of states can't exist without the union being there. India is not a confederation of states, it's a union of states. And therefore, to envisage a tax system as has been suggested by some honorable members, where effectively the union government gets excluded in the matters of taxation policy. Now, what was the system which was envisaged? The 2011 bill, and please I should not be misunderstood, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि उसमें ये गलतियां थी, क्योंकि स्वाभाविक है कि इस तरह का कानून जब समय में चर्चा होती है तो सुधरता है, हर दिन सुधरता है। तो 2011 के कानून में यह लिखा था कि कंसेंसस के माध्यम से निर्णय होंगे। अब प्रश्न यह आया कि कंसेंसस का अर्थ क्या है? इज कंसेंसस यूनानिमिटी? इज कंसेंसस 75% ऑफ द वोट, 80% ऑफ द वोट? इट वॉज जनरली अ वर्ड कंसेंसस. Obviously the intention was very good, but to implement it specifically was very difficult. So the standing committee said a better system would be, and this was all political parties in that standing committee, which created a new system or suggested a new system to say that states must have 2/3 of the votes, center will have 1/3 of the votes, but the quorum required for succeeding should be 3/4. Now it is half truth when you say the center has a veto on the states. The states also have a veto on the center. So both have a veto on each other, and therefore the constitutional structure they suggested was a structure by virtue of which both center and states are compelled to work with each other and reach an arrangement with minimum 75% people agreeing. But a happier situation is where almost everybody agrees. So the GST Council, and who is the Council? The Council effectively represents us, all of us who are sitting here. We are the Council of States. They are the state governments which have elected us, the state legislators. So effectively the same view. So today if the GST Council makes a suggestion, there will be 7 or 8 finance ministers of the Congress party. There will be a finance minister of the Samajwadi Party, there will be 2 of the CPM, there will be 1 of Trinamool, there will be 1 of AIDMK. So almost every political party which is in power in some part of the country or the other would be almost directly represented, or in future is likely to be represented. So that council, along with the central government nominees, is the one which will take all these decisions. And if we look at the structure of the empowerment which is given, the powers of parliament are not taken away. The powers of state legislatures are not taken away. The council has been given functions. If we look at the amendment, clause after clause it is said, notwithstanding anything contained, Parliament may, and subject to clause 2, the power make laws.
Parliament will make this law, state legislatures will make this law. Now, in particular with regard to taxation, there are two matters in which a greater emphasis has been added, where it is specifically said that Parliament will make a law on the recommendation of the Council. So Council will recommend to us and we will make a law. One is for the purposes of IGST. For the reason that if goods travel from Kerala to Tamil Nadu, who will adjudicate? Either of the two states. So one state will adjudicate on the rights of the other. So since the central is adjudicating, but it affects the rights of the states, the power is with the center, but our law will be based on what the council says, which has 2/3 of the majority of the states. And the second more binding principle is the compensation principle, which says, as far as the compensation is concerned, and that is the point that Derek made, and this language has been changed to give comfort to the state governments. Normally the authority of Parliament is supreme, so the Constitution throughout says Parliament may make a law. So out of respect for Parliament, we always use the word may. But the states had an apprehension because of some reason, what if Parliament does not make a law? So they made a suggestion which the legislative department felt was not correct, but we still incorporated it. Please put Parliament shall make a law. So this is going to be the only provision where Parliament is mandated rather than requested to provide for compensation. And this law will also be made on the recommendation of the GST Council, so that we don't make unilaterally a law of our own choice, so we act on the advice of the Council. Otherwise, in every other area, and this will answer most of the questions raised in the debate, and I'll just read one more clause from this proposed bill. Goods and Services Tax Council will make recommendation to the Union and the states. वो दोनों को ये सुझाव देगी, recommendations, क्या? One, on taxes, cesses, surcharges levied by union, states or local bodies which are to be subsumed in the goods and services tax. Goods and services that may be subjected to or exempted. अब किसको exemption मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? This will be recommended by the Goods and Services Tax Council, which will be recommended to the State Assembly or to the Centre. The model Goods and Services Tax Laws, तो जिस कानून की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको वो लोग बनाकर हमारे पास भेजेंगे, और इसलिए स्वाभाविक है कि संसद में उसकी चर्चा होनी अनिवार्य होगी. तीसरा, the threshold limit and the turnover below which goods and services will be exempted. Rates including floor rates with bands and goods and services tax. तो आज बहुत सारी चर्चा चिदम्बरम साहब ने शुरू की कि टैक्स रेट क्या होगा, मैं उसका उत्तर दूंगा. पर जिन लोगों की 2/3 से है, और वो कोई अनजान लोग नहीं है, they are all elected state governments of states and union territories, 30 of them, sitting with the central government. They are going to make a recommendation कि मुझे कितने टैक्स की आवश्यकता है. Are states enemies of the people that they will say that we are going to tax people twice more than it is necessary? If they did that, they'll be voted out of power. So we must trust the sense of responsibility of the states who belong to the same political parties as us, who have in their meeting last week said that our guiding principle is going to be, one, that we will lower the basis of the tax. So we'll lower the present rates. And on lowering the present rates, I think Mr. Anand Sharma just now made a very valid point. आज स्थिति क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज चार्ज करती है. लगभग 80% आइटम एक्साइज के 12.5% टैक्स है. यही आनंद जी ने शायद आंकड़ा दिया अभी. राज्य जो वैट चार्ज करते हैं, लगभग 55% आइटम्स पे वैट 14.5% है.
अगर इसकी वेटेड एवरेज ले ले तो लगभग 65-70% आइटम्स पे कंबाइंड टैक्स 27% है, राज्य और केंद्र का मिला के। इसमें अब हम सेसेस भी डाल दें, लग्जरी टैक्स डाल दें, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स डाल दें, और जितने छोटे छोटे टैक्स लगते हैं वो सब डाल दें, तो ये फिगर 30 या 30 से भी ऊपर चली जाती है। अब आज उस आंकड़े के ऊपर जब वो टैक्स स्टेट्स और सेंटर में बंटता है तो उससे गुजारा चलता है। लेकिन जीएसटी आने के बाद कम से कम 3 परिवर्तन आएंगे। पहला परिवर्तन यह होगा, और जो चिदम्बरम साहब ने ठीक कहा, आई थिंक ही मेड अ वैलिड पॉइंट व्हेन ही सेड द सिस्टम विल बी मोर एफिशिएंट, इट विल बी मोर कंप्लायंट, there will be avoidance is becoming more difficult because you will be detected at some stage or the other. So from your raw material purchase right till the transfer of goods, every stage of value addition, when it enters the network, right till the point it is sold, and if at some stage it enters the system, it is possible to track out the transaction and then check evasion. Now, once this is possible, the system will become more efficient. The second will be that there will be no cascading effect of tax on tax. आज अगर 6 स्टेजेस पे टैक्स लगता है, तो हर स्टेज पे जो पहले टैक्स दिया गया है उस टैक्स कंपोनेंट पे भी टैक्स लगता है। तो जीएसटी में देयर विल बी नो टैक्स ऑन टैक्स, तो वो उसकी दर कम आएगी। तीसरा इसके साथ एक और तर्क है कि कई आइटम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर या लोअर रेट का टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा। एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ इन्फ्लेशन, लेट मी जस्ट गिव अ फिगर फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस हाउस। In the consumer price index, 54% of the CPI basket is tax exempt, GST exempt, as of today. And probably that kind of trend the council will take it into consideration. Why would they want to add to inflation? 32% are taxed at a lower rate, which is currently for the states, for the central government 6%. Only 15% are taxed at the standard rate. So आज भी ये स्थिति है, when all these factors, there being no tax on tax, system becoming more efficient and evasion becoming more difficult, plus lower rate of tax or no tax in certain items, from this 27 to 30% will bring the rate down. How much will it bring down? Over a period of time, it will increase. Now, those who have to decide this say we are guided by 2 factors. Our first factor is that this 27% or 30% is too high. It is inflationary. It costs the people. Therefore, the rate must come down. So, the first guiding principle, and that's a resolution that the state finance ministers passed, that the rate should come down. The second, they said, we will collect what is essential for our present revenue requirements. Every state said, I have a commitment to my own people in terms of poverty alleviation schemes, social sector schemes, in terms of developmental activity. Now it's very easy to speak in terms of, let me put a cap. And let me tell you, even the 18% that you suggested based on the Chief Economic Advisor's report, even if you read that report carefully, there are some factors. When the report went to the state finance ministers, they said our calculations differ. So that's the Chief Economic Advisor's view. But the state finance ministers did not agree with that view. They wanted a slightly higher one because they wanted a cushion. The second factor is that the report does not take into consideration, it's based on the 2013-14 figures. So any cesses that have been levied subsequent to that. That's the first factor that report didn't take into consideration.
The second factor it did not take into consideration is the compensation that the center will have to pay to the states. And the chief economic advisor, I've got the report before me, did not say 18%. He gave a band of 16.9 to 18.9%. You can approximately treat it 17 to 19. And if you take it as a band of 17 to 19 and add these two factors, it would move slightly up. He is optimistic that this figure can be maintained, and if this figure can be maintained, it will be a very successful GST. The states were not as optimistic as him. And the states felt that you are expecting us to come down from 27 and 28 and 29 down. Suddenly a 7, 8, 10% fall seems utopian to us, it doesn't seem real. So we are, as we stand today, we are in the realm of a situation where the exact calculations of rupee and a pi will have to be done. That's a economic and an arithmetic exercise. That can't be based on a political desire. The political objective is very clear. I share your objective. The rate has to come down. And therefore the rate must be reasonable. We'll try for the most reasonable rate. But this is effectively as we stand today as far as the rates are concerned. Now, one of the questions which was raised, and I think to implement a GST is a headache, to be a former finance minister is a luxury now. And therefore, when Mr. Chidambaram said that I went from pillar to post and so did your predecessor, you must seriously today look back why it was not successful. As a political argument, you can say, oh, the Gujarat chief minister at that time did not agree. Let me tell you. Put that 2011 bill before the state governments today. Put that before the state governments today, and you will not find one state government proposing the bill in that shape. And I'll tell you the reason why. The first meeting of the State Empowered Committee that I attended, I was told that all the finance ministers, including those of my party, including the Gujarat finance minister, even with the change of government, are not willing to trust the center. And I said, why? They said from 2009, 10 and 11 for 3 years, CST has been promised, and we are in 2014, not a single rupee has been paid. And therefore, from 2014, I promised them in 3 installments, I will pay the CST. So for 14, 15, I paid 1/3 and 1/3 each from the central revenues, and this was a precondition for a dialogue. And every BJP chief minister, NDA chief finance minister also took the same stand. For this year, the 3rd installment is being paid, of which the first part has been paid. So when Derek says, please clear our dues, he's right. This was a precondition in the set. What was the second problem they had? The second problem they had was, if we lose money, how do you compensate us? The 2011 bill did not mention anything about the compensation. So today, when we suggested in the 2014 bill, we'll pay compensation for 5 years, so distrustful were the states of the center that my original proposal was full compensation for 3 years, thereafter 1/2 for 1 year, 1/4 for the 5th year. The state said nothing doing, give us full compensation for 5 years. So the word may, the parliament may by law provide for compensation, they said we don't even trust your may, make it shall. Because your intention has never been to pay. In the past, CST was not paid. That is how may has become shall. It's unprecedented, but that's how may became shall.
And therefore, in the 2011 bill, this provision for compensation was not there. And that is why one had, and of course the third question was, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, and Gujarat, they all at that time belonged to different political parties. These four states were speaking one language. They said, we are manufacturing states. We have invested thousands and thousands of crores for better infrastructure for manufacturing. We have invested more in power. We have invested more in ports. We have invested more on highways and so on. So because we have invested more, and now this is a destination tax, the consuming states will benefit. So I have spent on creating a manufacturing infrastructure. So I am going to lose. What is the methodology of compensating me? And your bill didn't have a provision. So that is why they let this entire, and I don't think we should actually take it in an adversarial sense that this is Congress BJP. Even amongst the BJP, there were consuming states which had a stand diametrically opposite to the one that Gujarat had, because that depended on the interest of the state itself. And I think Mr. Chidambaram mentioned that the bill has a clumsy drafting because it says that some of the revenue collected will not be a part of the consolidated fund of the center or the consolidated fund of state. And the argument was that every revenue has to go into the consolidated fund. The response is that I think using the word clumsy drafting is a bit too extreme an expression. I thought probably the best draftsperson India ever has was B.N. Rao, who aided Dr. Ambedkar. And the phrase which you call clumsy drafting is verbatim the same if you picked up Article 268(2) of the original Constitution. And this is B.N. Rao's draft, which Dr. Ambedkar, as the chairman of the drafting committee, forwarded. The proceeds in any financial year of any such duty leviable within any state shall not form a part of the consolidated fund of India, but shall be assigned to that state. Similarly, the Constitution has been amended, and the similar language has been included in 269(2). And the reason is the following: why do you not include a part of the revenue into the consolidated fund? In a GST system, and this is one of the questions that Derek had raised, you can't have the same assessee being assessed simultaneously by the center and the states. So in some cases, Derek's point was, he said below 1.5 crore, the states must do it. It's a functional necessity. We'll have to find an answer to this. The state will do it. In higher cases, the center will do it. Where the center collects the revenue through the computer network, the state share is then credited to the state. Similarly, जहां state इकट्ठा करता है revenue और वो सेंटर के हिस्से में थोड़ा सा आना है तो इट इज क्रेडिटेड टू द सेंटर. अब उसको अगर कंसोलिडेटेड फंड में डाल दिया सेंटर या स्टेट के, तो फिर पहले संसद आना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन के थ्रू हर राज्य को उसका हिस्सा मिलेगा. सो इफ आई कलेक्ट सम टैक्स फॉर तमिलनाडु विल हैव टू वेट टिल द अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड बाय द सेंटर बिफोर इट गेट्स दैट रेवेन्यू. एंड टू अवॉइड दैट सिचुएशन, you now have a provision that it will not be credited to the consolidated fund of the center or the state. चले तो वित्त मंत्री बताते हुए तमाम चीज़ों के बारे में इस तरह बातें रखी गई कि राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा. ये भी बताया गया कि समान टैक्स जो है कोशिशें की जा रही है कि राज्यों को नुकसान ना हो, राज्यों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है भूमिका होगी. 2/3 मत जो विवाद हैं उसके मुद्दे पर भी वो बोलते हुए नजर आए. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ.
कहाँ है अश्विनी सर? घटना चक्र में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात हम करेंगे जीएसटी की। जी हां, जीएसटी पर आम सहमति लगभग बनती हुई दिखाई दी है आज राज्यसभा के अंदर। हम तमाम उसके पहलुओं में बातचीत करेंगे, कितना वाकई में अर्थव्यवस्था के लिए ये फायदेमंद होगा, क्या कुछ इसके मायने हैं, तमाम चीजों में बातचीत करते हैं। पहले मेहमानों को रूबरू कराते हैं। आनंद साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। शकील अंसारी साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। डॉक्टर एस के दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अर्थशास्त्री के तौर पर। और हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दत्ता साहब आपसे। तमाम चीजें कही जा रही हैं, तमाम तरह के जो है आंकड़े भी, बहुत बड़ा रिफॉर्म है, 16 साल से पेंडिंग था, अब इस पर जो है ऐसा लग रहा है कि लगभग सहमति बन गई है, पास हो जाएगा। मेरा 2-3 सवाल है आपके। एक तो ये कि कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन को लेकर के बड़ी चिंता है, महंगाई बढ़ेगी 2-3 साल तक। एक कैसे उसको सरकार हैंडल करती है, क्योंकि CLSA की रिपोर्ट हो, तमाम जो एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि महंगाई कंट्रोल करना, जीएसटी को लागू करना, पारित कराना उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितना कि सिस्टम में इसे लाना और इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना। आपके लिए बड़ी चुनौती क्या लग रही है? मैं समझता हूं कि जहां महंगाई की जहां बात आती है, भारत में जिस तरह का महंगाई है पिछले 20 साल से, उससे ज्यादा महंगाई भारत के फिलहाल के आर्थिक परिस्थिति में उससे ज्यादा महंगाई होने की गुंजाइश नहीं है और हो भी नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि हाँ, अगर जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई को लेके अगर प्रश्न अगर कुछ लोग अगर कर रहे हैं और अगर कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वो इतिहास से देख रहे हैं, ज्यादातर देशों में जो इम्प्लीमेंट किया गया वहां पर 2-3 साल तक उसका आर्थिक ढांचा देखना बहुत आवश्यक होता है। जिन जिन देशों पे जीएसटी लागू है वो मैक्सिमम जितने देश है वो कैपिटल इंटेंसिव देश है। मसलन जैसे कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, यूके हुआ, फ्रांस हुआ। वहां पे जितना इकोनॉमी जो ड्रिवन है वो कैपिटल ओरिएंटेड ड्रिवन इकोनॉमी है, लेबर ओरिएंटेड ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है। लेबर ओरिएंटेड ड्रिवन की इकोनॉमी की जो कंपैरिजन है वो कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमी के कंपैरिजन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वहां पे जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती रही पश्चिमी देशों पे, उस हिसाब से इन्फ्लेशन भी बढ़ा है और वो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपके इंडस्ट्रियल गुड अगर आपका आमदनी बढ़ रही है, फिर तो अगर महंगी होती है चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं अगर आमदनी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तब तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नहीं, उस पे भी हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ रेट अगर बढ़ रही है और उसके साथ अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक लेमन आर्गुमेंट हो सकता है। मेरा मानना है कि जितने सारे कैपिटल ओरिएंटेड जो इकोनॉमी होते हैं, जिसके ऊपर कैपिटल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और मेजर कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल गुड्स की होती है, वहां पे इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी अक्सर दिखा गया है जब इकोनॉमी का विस्तार हुआ है। पर जो लेबर ओरिएंटेड या फिर लेबर कंट्रोल जो इकोनॉमी है, जहां पे लेबर का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होता है, छोटे और घरेलू उद्योग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका होता है, कृषि की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है और महत्वपूर्ण होता है, वहां पे इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी जीएसटी लागू करने से नहीं देखा जा सकता है। मसलन अगर मैं उदाहरण दूं तो इंडोनेशिया का उदाहरण मैं दे सकता हूं, उसके साथ साथ वियतनाम या फिर मलेशिया का उदाहरण मैं दे सकता हूं जो लेबर इंटेंसिव ओरिएंटेड इकोनॉमी है, या फिर अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश है, साउथ अफ्रीका हुआ, बोस्टवाना हुआ, जिन सब देशों पे जीएसटी लागू है। तो उन सब देशों पे इस तरह का सिचुएशन दिखा नहीं गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कि महंगाई बढ़ेगी नहीं, राधा महंगाई घटेगी जीएसटी आने से। और वो इसलिए होगा क्योंकि हमारे देश में जो टैक्स की जो स्ट्रक्चर है और जो कॉम्प्लेक्सिटीज है टैक्स की, उसके चलते महंगाई बहुत हिडन वे में महंगाई बढ़ता है। मसलन अगर संतरा अगर आप मेघालय से आप अगर दिल्ली लाना चाहते हैं तो संतरा जो मेघालय में एक पीस संतरा जो 20 रुपए की हो सकती है शिलोंग के मंडी में, वो जब तक दिल्ली आती है, जैसे गुवाहाटी आपके बंगाल, फिर कलकत्ता से जमशेदपुर से पटना से लखनऊ से मेरठ, इस तरह से गाजियाबाद से जब दिल्ली जब तक पहुंचती है तो उसका 10 गुना ज्यादा कीमत बढ़ जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में एंट्री टैक्स और एग्जिट टैक्स अलग तरह की है और उसके मापदंड के हिसाब से उसका आकलन करके फिर फाइनल प्राइसिंग होती है। जीएसटी लागू होने से ये यूनिफॉर्मिटी जो पूरा आ जाएगा पूरे देश के यूनिफॉर्म स्ट्रक्चरिंग सिस्टम में और टैक्स के सिस्टम में, और यूनिफॉर्म एक जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके चलते जो
सामान जो गुवाहाटी में जितने में बेचा जा रहा है वही सामान दिल्ली जैसे शहर में या फिर मुंबई जैसे शहर में भी बेचा जाएगा। ये यूनिफॉर्मिटी आने से इसका एक बहुत लाभ होगा पूरे देश के इकोनॉमी के लिए। इसके साथ साथ जीएसटी आने से आपके इकोनॉमी की भी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। क्योंकि मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं मैं, लेकिन उपेंद्र जी के पास बहुत संक्षेप में एक चीज जो सबके लिए मुश्किल लग रही है कि हमने देखा है कि इस देश में जब जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज दिया गया, कोई छूट दी गई, उसको पास ऑन नहीं किया जाता है कंज्यूमर पे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि आरबीआई की तरफ से भी जब रेपो रेट या सीआरआर में कटौती की जाती है उससे भी कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया जाता। ये सिस्टम को कैसे आप इंश्योर करेंगे कि प्रॉफिटेरिंग नहीं करेंगी कंपनियां पास ऑन करेंगी कंज्यूमर को? नहीं, इसके लिए लेजिस्लेशन पे तमाम जितने सारे धाराएं हैं जीएसटी बिल के अंदर वही अपने आप इस चीज को सिक्योर करेगा। और कंपनी जो मैनिपुलेशन करने की कोशिश करती है वो मैनिपुलेशन आज के डेट में इसलिए होता है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है टैक्सिंग सिस्टम। उपेंद्र जी आपको एक बार यूनिफॉर्मिटी आ जाने के बाद जब एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो जाएगा टैक्सिंग सिस्टम का, उसके बाद कंपनी के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा। और इसीलिए कुछ कंपनीज आज के डेट में इसको विरोध करने की शुरुआत कर दी है और विरोध करने की कोशिश कर। उपेंद्र जी आपकी पहली टिप्पणी इसको लेकर के, क्योंकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि 1% की जो कांग्रेस की मांग थी वो मांग ली गई है। अभी वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की 18% की मांग जो है वो वाजिब नहीं लगती है। उसके क्या कुछ मायने हैं और कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि उसके बहुत सारे चरण हो जाएंगे अगर हम 1% की छूट अगर राज्यों को देते हैं तो। देखिए, कांग्रेस चाह रही थी कि 18% फिक्स हो, अपर लिमिट सीलिंग लगा दी जाए कि उससे ऊपर आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसमें समस्या है कि कोई भी सॉवरेन स्टेट है जो कि इस तरह का लिमिटेशन में नहीं बनना चाहेगा। जरूरत पड़ने पर 25% लगाया जा सकता है, 30% लगाया जा सकता है। यानी क्या रिक्वायरमेंट्स है, स्टेट की रिक्वायरमेंट्स है, आप स्टेट को लिमिट नहीं कर सकते हैं ना। तो ये इसलिए सरकार को मंजूर नहीं था। उसका कहना था कि इसका कानून के द्वारा हम प्रोविजन कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं डालें, क्योंकि इसमें अगर डालेंगे तो इसको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। कानून आप बना देते हैं तो कानून कभी भी आप सिंपल मेजोरिटी से ये कर सकते हैं। तो उस कांग्रेस की हर धर्मता है, कोई भी सॉवरेन स्टेट है उसको इस तरह से कमजोर नहीं करना चाहिए, लिमिट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए 18% वाले पर मानने से इनकार कर दिया। फिर 1% है जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स है उसको उसकी मांग को ध्यान रखते हुए किया जा रहा है। हमें लगता है कि उसमें वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो किया जा सकता है। लेकिन उसमें जो कमजोर राज्य हैं उनको भी देखना पड़ेगा उस मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के साथ। लेकिन जो 18% वाला है, हमें लगता है कि कोई भी सोवरेन स्टेट के लिए खुद कांग्रेस की अपनी सरकार आ जाएगी कभी तो उसको परेशानी होगी। आपको लग रहा है कि ये जो राज्यों से जब राय ली जाएगी तो इस पे मामला फंसेगा, इस पे दिक्कतें होंगी? राज्यों देखिए, इसमें है कि सब राज्यों से पास होना जरूरी नहीं है। 50%, हाँ 50% है तो 50% है कि बीजेपी की अपनी राज्य सरकारें हैं, कांग्रेस की भी सपोर्ट कर रही है। उसके बाद जो गैर बीजेपी राज्य सरकारें हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, मुलायम सिंह यादव, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो राज्यों से कोई समस्या नहीं। समस्या असली राज्यसभा से ही थी कि जहां यूपीए, जहां एनडीए है जो माइनॉरिटी में है, तो असली समस्या यही थी। और आपने जो महंगाई की जो बात कही, इन्फ्लेशन की, हमें भी लगता है कि ये महंगाई इससे नहीं बढ़ेगा। हो सकता है इससे कुछ घटे ही घटे, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है और टैक्सेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों मिलकर के है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। इसमें इतना कंफ्यूजन है और उसके कारण इतना भ्रष्टाचार है। सही बात है कि हमारे यहाँ जो महंगाई है वो करप्शन लेड इन्फ्लेशन है, वो टैक्सेशन से बड़ा करप्शन। तो ये जो नई सिस्टम बन रही है इसमें करप्शन बहुत घटेगा, वो ट्रांसपेरेंसी होगी और उसके बाद ही कुछ डिजिटाइजेशन वगैरह की ओर बढ़ेगी। जो टेक्नोलॉजी और ये सिस्टम दोनों मिलकर के करप्शन को बहुत हद तक खत्म किया जाएगा। तो वो जो लीकेज हो जाता है, लेकिन करप्शन का भी मान लिया जो व्यापारी है 30% दे रहा है टैक्स, मान लिया उसका टैक्स इवेजन कर रहा है, लेकिन वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ब्राइब कर रहा है, तो मालूम हुआ कि बढ़कर के नेट हो गया 40% हो गया। ये तो कह रहे हैं 27% से 30%। वित्त मंत्री बोल रहे थे कि हमारे यहाँ एवरेज 35% तक 40% नहीं है, तो 50 हो सकता है। एवरेज बतला रहे, कौन एवरेज? अभी जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर रहे हैं तो हमारा करीब 27% टू 30%, एग्जैक्ट फिगर नहीं, ये इसी के बीच में कहीं होगा। लेकिन करप्शन के कारण वो 40% हो जाता है। तो वो जो घटेगा
करप्शन का जब निकल जाएगा फैक्टर, तो इससे हमें लग रहा है कुल मिला जुला कर किसी में वो कीमतें घटेंगी ही, बढ़ने की इन्फ्लेशन होने की कोई संभावना नहीं। हाँ, सबसे बड़ी चैलेंजिंग है कि वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि समय कम है। और ये सबसे बड़ा जो डाउंटिंग टास्क होगा वो होगा कि जो पुरानी जो हमारी जो टैक्स व्यवस्था है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हटाकर एक नया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करना, तो ये है जो कोई आसान काम नहीं, लेकिन ठीक है, मुश्किल काम भी किया जा सकता है। और ये जो घटना घट रही है, ये सिर्फ इकोनॉमिक हिस्ट्री की घटना नहीं, हम लगता है भारत के राजनीतिक इतिहास, आजादी के बाद का जो राजनीतिक इतिहास है, उसकी सबसे बड़ी घटना है। उसका कारण है कि जो हमने संघीय ढांचा बनाया है, इसमें राज्यों को अधिक अधिकार दे दिए गए थे, उसमें है कि राज्य है जो अपना अधिकार सरेंडर कर रहा है। हालांकि वो बतला रहे थे वित्त मंत्री की सीधे हम नहीं करेंगे, जो काउंसिल बना हुआ है जीएसटी काउंसिल, उसमें 2/3 राज्यों का रहेगा और 1/3 इसका रहेगा, और उसका जो रिकमेंडेशन होगा उसके आधार पर बनाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो मानना पड़ेगा कि एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं, जो अलग अलग राज्य में जो बटा हुआ था, तो उसमें एक कंसोलिडेशन, मार्केट का कंसोलिडेशन, एक टैक्सेशन सिस्टम होना, यह एक बहुत बड़ी बात है। और हमें लगता है कि एक ऐतिहासिक घटना है, आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि देश के लिहाज से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ी राजनीतिक घटना भी है। आपकी टिप्पणी शकील साहब, आप कैसे देख रहे हैं आज के इस घटनाक्रम को? 16 साल से पेंडिंग पड़ा था ये बिल। पी चिदम्बरम साहब ने बोला कि अच्छी बात है कि जेटली साहब ने कहा कि ये यूपीए का बिल था। कैसे देख रहे हैं आज जीएसटी के मामले पे आपकी टिप्पणी पर? जीएसटी तो कांग्रेस पार्टी भी लाना चाहती थी, तो यूपीए की गवर्नमेंट उस वक्त बीजेपी एग्री नहीं थे, लेकिन चलिए डेमोक्रेसी में आज सहमति बन गई है। राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होता अगर सहमति नहीं बनती, तो अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्र हित की जो चीजें हैं वो पार्टी से ऊपर होनी चाहिए, वहाँ छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल तो हम समझते हैं कि अभी कुछ देर में ये वोटिंग होने वाली है, तो ये बिल पास हो जाएगा। अब जहां तक इस बिल के फायदे या नुकसान का ताल्लुक है, उसके बारे में जो विचार विमर्श कई बार वो अर्थशास्त्री लोग करेंगे हर तरह, लेकिन हम समझते हैं कि ये राष्ट्रहित में जब इतने महत्वपूर्ण है तो फायदे होने की आसार और आशा करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज है उस को, जैसा अभी उपेंद्र जी ने कहा, वो ठीक कहा कि वो जो सिस्टम हमारा है वो सिस्टम कैसे इसको आगे ले जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि टैक्सेशन का पूरा स्ट्रक्चर स्टेट का अलग है, केंद्र का अलग है, उन सबको क्लब करना है और क्लब करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। और उसमें राज्यों की भी आजकल रेवेन्यू कलेक्शन इसी से है, टैक्सेशन से है। अभी देखिए कल बिहार सरकार ने टैक्स बढ़ाए, बजट के बाद भी बढ़ाए हैं, तो ये तो कई राज्यों में अपने है। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब वो फैक्टर को किस तरह से कंसोलिडेट किया जाएगा, जिससे हम समझते हैं कि निश्चित रूप से इससे जनता को फायदा होना चाहिए। चलिए, इस विषय के लिए समय नहीं है, इसको, ये बड़ा विषय है, आराम से समझाने वाला विषय है, हम इस पर फिर कभी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय बहुत कम है। एक और विषय है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें, सार्क में जो है हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके पहुंचने के बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, इससे बड़ी बात यह है कि वहां पर नवाज शरीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर नहीं है। तो क्या सार्क से पहले माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वहां की सरकार? इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहली टिप्पणी में चाहूंगा आनंद साहू जी, आप दें, कैसे देख रहे हैं, क्या इस तरह के स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखिए, सीधे तौर पर विपुल जी, ये दिख रहा है कि पाकिस्तान का तमाम डिप्लोमेसी फेल हो चुका है और वो गाहे बगाहे जहां कहीं भी मौका मिलता है इसी तरह वो आवाज उठाने का प्रयास करता रहा है और इसमें बुरी तरह से पिटता भी रहा है। और क्योंकि आज देखिए जिस प्रकार से आज ये सार्क में ये उठना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मल्टीलेटरल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होता है, चाहे वहाँ ट्रेड बिजनेस के बारे में डिस्कस होता है, चाहे वहाँ पीस मूवमेंट के ऊपर डिस्कस होता है, तो या चाइल्ड लेबर के उसको खत्म करने के ऊपर होता है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर होता है। आज इन लोगों ने जो ब्रेक कर रहा है, ये सारे जो जवाब देंगे वहां पर, आपको लग रहा है अभी राजनाथ सिंह भी कुछ जवाब देंगे वहां पर? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि देखिए ये जो सार्क है उसका जो एक
जो एक रेस्पेक्टफुल एक फोरम था उसको इन्होंने पहली बार वायलेट किया है, और इससे राजनीतिक रूप से साफ तौर पर एक मैसेज जो देता है पाकिस्तान नेगेटिव वे में जाकर के कि कश्मीर एक भारत का इंटरनल इशू नहीं है। ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ये बौखलाहट और इंटरनली जो उनके जो आतंकवादी जिनको दुनिया ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, भारत के अंदर जो आतंकवादियों को भेजते हैं, जिन संगठनों के लश्कर तोयबा या जो भी और हैं, उनके सारे लोगों ने हिजबुल मुजाहिदीन, उनके आतंकवादी यहाँ मारे जाते हैं। मुझे लगता है माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे गृह मंत्री को यह कहना चाहिए कि तुम अगर यहाँ भेजोगे आतंकवादी हमारे देश में तो उनको तो मारेंगे ही, तुम्हारे घर में भी घुस के अगर आतंकवादी होंगे तो उनको मारेंगे। और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और रहेगा, इसके लिए तुम इस तरह की आवाज उठाओगे तो तुम्हारा ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है। पुष्पेंद्र जी, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, एक पाकिस्तान का एक होस्ट होने के नाते इस तरह के स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर नहीं? इस टॉपिक पे पाकिस्तान को पता है कि इसके ये बात कहां तक पहुंचेगी? क्या प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूं कि इस मीटिंग से पहले भारत और पाकिस्तान के बड़े लेवल के नेताओं में, चाहे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का बयान कुछ दिन पहले आया हो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और फिर भारत के गृह मंत्री ने जो पार्लियामेंट में बयान दिए हैं, उसके बाद सुषमा स्वराज ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो उससे पहले माहौल बन चुका था। लेकिन सवाल यह है कि ये तब बातें हो सकती हैं। भारत के गृह मंत्री के जाने और न जाने पे भी जो संशय था, उसमें भी बार बार ये कहा जा रहा था, पाकिस्तान का मीडिया लिख रहा था कि अगर वो नहीं आएंगे तो सार्क के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। तमाम जो भारत के इस समय टेम्पर बहुत हाई है, भारत के अंदर गुस्सा है बहुत ज्यादा लोगों को, उसके बावजूद भी गृह मंत्री वहां गए। लेकिन अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लेवल का अगर आदमी ये बात कहता है उस एक ऐसे फोरम पे जहां कश्मीर डिस्कस नहीं होने जा रहा, जहां कोई बायलैटरल बातचीत नहीं होने जा रही, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास अब इतनी हताशा और निराशा हो चुकी है कि उनको लगता है कि कुछ भी हो जाए, सब कुछ ताक पे लग जाए। यूएनओ पे वो गए, वहां उनको जिस तरीके की फटकार लगी, ईयू में उनसे किसी ने बात नहीं की, इस्लामिक देशों में जो उनके बहुत बड़े बेख्वाह बना करते थे, सऊदी अरबिया से लेके ईरान से लेकर के तमाम सारे लोगों ने चुप्पी साध दी। अब इस फोरम पे अगर वो ये बात कहते हैं, एक होस्ट कंट्री के नाते ये बात कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी अगर ये बात कहता है, तो मुझे लगता है कि वो सार्क की इस मीटिंग को पूरी तरीके से कश्मीर बनाम इंडिया करना चाहते हैं, जिसका जवाब राजनाथ सिंह के पास ज्यादा है और उसमें शायद नवाज शरीफ के पास शब्द कम पड़ेंगे। लेकिन आप ये भी देखें कि आज जब वो वहां पहुंचे हैं, उस होटल के बाहर जहां वो ठहरे हुए हैं और जहां सार्क की मीटिंग हो रही है, और जाने से पहले तमाम ये सब बातें कही जा रही थी, उनको राष्ट्रपति लेवल की सिक्योरिटी दी जा रही है, तमाम बातें। लेकिन आप ये सोचिए कि उस देश के खुलेआम आतंकवादी, जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, जिसके ऊपर इनाम रखा हुआ है, वो पाकिस्तान की आवाज बनकर के वहां विरोध कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ का बयान, सैयद सलाउद्दीन का बयान, मोहम्मद हाफिज का बयान, जकीउर रहमान का बयान, अजहर मसूद का बयान, इन सबके बयानों में मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कहीं ये नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है या हाफिज सईद बोल रहा है या ये सैयद सलाउद्दीन गलती तो नहीं कर दी है? जाके गलती तो नहीं कर दी? नहीं, मैं कह रहा हूं गलती करने नहीं की है। मैं पहले दिन से सपोर्ट कर रहा हूं राजनाथ। उनका जाना पाकिस्तान की हताशा दिखाता है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ रहा है, और उस वक्त जब आपकी सरजमी के ऊपर आपका पड़ोसी जो उससे आपके रिलेशन इस वक्त बहुत हाई है, टेम्पर बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं, और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ये बोलता है। चौधरी निसार का बयान ये आया है, अभी तक भारत की तरफ से जो आइटनरी गई है उसमें कोई बात ऐसी नहीं गई है, लेकिन भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में चौधरी निसार का बयान आया है कि अगर राजनाथ सिंह मुझसे नहीं मिलना चाहते तो ये उनको गलतफहमी ना हो कि मैं भी उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। तो ये जो बात कही जा रही है, अब आप एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आप वहां होस्ट हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप वहां मौजूद रहेंगे, होस्ट कंट्री की तरफ से रहेंगे, और ये बयान आप मीडिया रिपोर्ट्स पे दे रहे हैं। वो वहां से लगातार, जो अभी कसूरी साहब थोड़ी देर पहले टेलीविजन पे बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है उस पे पूरी कौम एक है। बार बार ये बात वो कहना चाहते हैं, वो खुद ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को जरूर उठाएंगे, लेकिन हम पठानकोट को नहीं उठाने देंगे। तो मैंने भी उसमें यही कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि आप इस मल्टी जो फोरम है उसको आप कश्मीर को उठाएंगे, लेकिन अगर कहीं आसपास बात हुई और
मीडिया ने पूछा, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त राजनाथ सिंह असले से इतना ज्यादा मजबूत है, इतने ज्यादा डोजियर है उनके पास कि पाकिस्तान कितना भी कह ले बराबरी नहीं कर सकता। आप आनंद साहू जी, आखिरी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा, उसके बाद बहुत छोटी छोटी टिप्पणी बाकी मेहमानों से। अब सिर्फ कल का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कल वहां पे डिनर भी नहीं करना है, डिनर करेंगे नहीं, चौधरी निसार के साथ मुलाकात भी नहीं हुई है, ना होगी ऐसा कहा जा रहा है। क्या कुछ कह सकते हैं, कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? आप रिप्रेजेंटेटिव हैं बीजेपी के, सरकार में आप नहीं है लेकिन बीजेपी के हैं। देखिए विपुल जी, सबसे बड़ी बात है माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे गृह मंत्री सीधे तौर पर एक जो सार्क सम्मेलन है उसके नाते वहां गए हैं। पाकिस्तान लकीली बाय फॉर्चुनेट दे आर होस्ट, और इसीलिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर बात करने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी के पास कोई ऐसा उत्साह नहीं दिख रहा है। पठानकोट का मुद्दा उठाएगा भारत, सबसे बड़ा चीज मुझे जो लग रहा है, पठानकोट का मुद्दा उठाएगा भारत ने जितने उनको एविडेंस दिए जी और अमेरिका ने जिस प्रकार से डोजियर दिया, साहू साहब समय नहीं दिया है जी, साहू साहब समय नहीं, साहू साहब डोजियर से ज्यादा क्या पाकिस्तान की सरजमी पे खड़े होकर राजनाथ उसे डोज दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे, और मैंने तो यही कहा है कि अगर ये पाकिस्तान अपने आतंकवादी और इस प्रकार के कट्टरपंथियों के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, मना कर दिया लगाम लगाने के लिए, चलिए तो हमारी सरकार जो समय समाप्ति पर उपेंद्र जी आपकी टिप्पणी, ऐसा लग रहा था कि शायद ये मल्टीलेटरल टॉक है, लेकिन नवाज शरीफ ने जो है एक तरीके से माहौल करवा दिया। बहुत छोटी टिप्पणी। देखिए, पाकिस्तान है जो बदहवासी के दौर से गुजर रहा है, इसके नेता हैं जो बहुत बदहवास हो गए, डिसेंसी है उसको भी ये कर रहे हैं, तार कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि राजनाथ सिंह अपनी डिसेंसी को बनाए रखेंगे और वो कुछ ऐसी बात नहीं कहेंगे, उनके लेवल पर ये उतर करके बात नहीं करेंगे। मल्टीलेटरल टॉक में गए हैं, वहां जो भी होगा उसका सामना करेंगे और शकील साहब उनके लेवल पर गिर करके नहीं वापस आएंगे। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा अगर इस तरह की बातें होंगी। जवाब शकील साहब देखिए, वो जो जवाब जो भारत को देना है वो ऐसा नहीं है जो हम उनकी बात से सहमत हैं कि वो जो हताशा का शिकार है। भारत हताशा का शिकार नहीं है, भारत एक बड़ा देश है और ऐसा ही नहीं ताकतवर देश है। पाकिस्तान जैसे छोटे लोगों की भारत के सामने खड़े होने की ताकत नहीं है। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर साहब गए हैं ना, होम मिनिस्टर, वो आप कल आप देखिएगा पूरा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ठीक है, दत्ता साहब आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर के। मैं तो सबसे पहले समझता हूं कि नवाज शरीफ के बयान सुन के मुझे लगता है, और जिस तरह से लगातार बयान दे रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के इलेक्टेड टेररिस्ट हैं। मतलब कि आतंकवादी है और इलेक्ट किया गया है। आतंकवादी देश है, आतंकवादी लोग ही उसका मुखिया होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर नवाज शरीफ अगर कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है, या फिर कश्मीर भारत का इंटरनल अंग नहीं है, या फिर इंटरनल पार्ट नहीं है, इंटरनल मैटर नहीं है, और कश्मीर अगर भारत का हिस्सा नहीं है, तो मैं समझता हूं कि मैं अगर वहां पे अगर रहता किसी ऐसे कॉन्फ्रेंस में, मैं सीधा सीधा अखंड भारत की बात उठा देता वहां। ठीक, चलिए समय नहीं है। पुष्पेंद्र जी आखिरी टिप्पणी आपसे जाना चाहिए, क्या अगर पठानकोट का मुद्दा या कोई जवाब नहीं दिया जाता है राजनाथ सिंह की तरफ से सख्त, तो क्या आपको लगता है हिंदुस्तान आने के बाद राजनाथ सिंह की आलोचना जबरदस्त होगी, राजनीतिक रूप से काफी कमजोर होंगे राजनाथ सिंह? इस वक्त देश में टेम्पर बहुत हाई है और भारत बहुत गुस्से में है। भारत की सरकार से ज्यादा भारत का अवाम, 125 करोड़ का देश है और डेमोक्रेसी है यहाँ है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि राजनाथ सिंह वहां जाएं और कोई बात आगे बढ़ाए हुए और उसका वो जवाब न दें। उनको यहां आकर इस डेमोक्रेसी में 125 करोड़ लोगों को भी झेलना है, उनके भी गुस्से का उनको ध्यान रखना है। यह बात अलग है कि वो अपनी बात को कितनी शालीनता से कहते हैं और शब्दों का चयन क्या करते हैं, इसमें भारत के लोग एक्सपर्ट हैं, वो बड़प्पन दिखाएंगे लेकिन बात जरूर कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी आपका, उपेंद्र जी आपका, शकील साहब आपका, दत्ता साहब आपका, आनंद जी आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में इतना ही। अब कल पर रहेगी नजर कि राजनाथ सिंह क्या जवाब देते हैं, क्या कुछ होता है साथ में। आप अपनी नजर बनाए रखिए जॉइंट टीवी पर। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।